Series 1, sealed and stamped. Outstanding. Outstanding. Good showing, good showing, good showing from South Africa women's. Uh, from the flaws we had in New Zealand, we worked on them quite well. The opening experiments, we found a good balance. Problem is, though, uh, Tasman is not really firing at number 3. That's the problem. Ooh, what are we gonna do with Tasman Brits? She's not firing at number 3. Let's see. Let's see. There was a match yesterday, the 5th and final T20 of the India Women's Tour of South Africa. Who won? South Africa won the toss, opted to bat, and we put up a. I wouldn't say it's a par score at especially the midway point. I thought we were short about 20 odd runs, maybe 20, 30 odd runs. See, generally, it should be a rule of thumb that in T20s, 180, you can fight in that. Anything below, you need to be at your absolute best, unless there's a serious gremlin in the pitch. But then also you have to hope that the gremlin stays for both innings, not just the one. Laura came out 92 runs in 56 balls. She's just in a league of her own. She's in a league of her own, the Wolf. How many? One century, one failed innings, and 350 plus scores. 350 plus scores for the captain, for the Wolf. She's just howling in a league of her own. Fantastic. Sunny, 23 of 23, not really impactful. You could say maybe Sunny made things difficult in the beginning, but it's all good. It's all good because we ended up winning the match. Otherwise, I would have put all the blame on Sunny and the 3 batters that followed. Sunny, 23 of 23. Yeah, she really I don't know, slowed down the runs. She, let's just say, put pressure on Laura to get the bulk. Let's just say that, but Laura went not out, so at least. Tasman, another failed innings. Not sure what's going on with Tasman. Maybe just send the opening again and send Sunny one down. I don't know what call we should make. The experiment in New Zealand, the experiment in South Africa was to find a different opening partner for either Tasman or Laura, and then have a bit of firepower come one down. So Sunny fit the bill to come opening, but with her, it seems Laura is the better suit. Let's see what happens. I think maybe in the World Cup, maybe just open with Tasman again, see if it works out. I don't know. Or maybe just keep the top 3 right now as is and hope that Tasman hits a purple patch. I'll just say fingers crossed. Andre Dirksen. Did I get the pronunciation right? Henri Dirksen, yeah. 4 balls, duck. Not really good. Not really a stable showing from her as well. Annika Bosch, she's been up and down, 11 of 8. Now, on these two, Andre and Annika, last year in the Women's One Day World Cup, when no one else really was standing up, it was only Laura, especially in the finals. Laura kept swinging from one side,
And then there was Annika that came at one point, Andri that came at one point. I I said it to myself at that time that it's now time for them to show that they can take the future of South Africa women's in their own hands, and they can be match winners. Unfortunately, not to be so that day, that final of the Women's World Cup. It ended up being just a one woman show from Laura, and she couldn't really find any partners on the other side. So it was a painful day, that one. Exposed a lot of issues in our batting, but yeah, I think that's why we're experimenting with all these opening changes. Need to, well, first of all, need to find Laura a place where she's comfortable. Tried sending her one down, didn't really work. Opening is where she's at her best, but we need to find others that can also play cameos around her. But no one is really consistent, eh? Down the line, no one is really consistent. Even with someone with the experience of Chloe, you don't really know. Nadine has been doing well for the past year and a bit, but don't know. Just the two women that you can bank on, Laura and Nadine, down the order. Everyone else, if they can just play cameos, I think we will be good if they can just play cameos. Don't need to think about going big. Just think about maybe getting 20 runs in 10 balls or so, and then we should be fine. But yeah. Annika, uh, 8 of 11 balls. Again, terrible. That whole middle batting was terrible. Chloe just couldn't get into a rhythm. Chloe, 10 balls and 12 runs. That's not the kind of player she is. And then Nadine, 2 balls, 1 run. Sunola did well towards the end. 8 balls, 16 runs. She hit well. Again, 155 for 6 after 20. No, I thought this was below par. I thought we were going to lose, but our bowlers had something else in mind. So just the one extra, that is what, by or leg by? Leg by. Uh, Bowling of India. Kranti God, 3 overs, 29. Okay. Couldn't get a wicket. Renuka Singh Thakur, 4 overs, 1 maiden, 21 runs, and 2 wickets. She stole the show with her bowling. That's your pick of the day because of that maiden. Because Sri Charni has also got similar figures, but Renuka's bowled the maiden. So she edges that competition there. And then Arundhati, 4 overs, 37. Slightly a bit expensive compared to the others, but okay. Dipti Sharma, 4 overs, 37. She got 2 wickets, so the wickets balance it out. And then Shifali, 1 over 8. Fall of wickets, we lost wickets after the power play. Just got the 49 in the power play, but then also it wasn't. What should I say? That 49 that we got in the power play, it's a good score to get in the power play in the first 6. But then again, it could have been more if only Sunny found rhythm, found pace off the pitch. If only she could get more. The opening stand was 75 or 54. It's a slow or okay partnership, but again, it was just one-way traffic from Laura, 51 of 31, and Sunny on the other end was going 23 of 23. Afterwards, there was a bit of a partnership, again, nothing really substantial. 24 of 22 run a ball, and then 16 of 13 just over a run a ball. But then come towards the end, Laura gets 15 of 5, Sunola gets 16 of 8. The finish was quite good in the last bit, but the middle phase was a serious struggle. India women's,
I thought they would chase this. I thought having benched Smriti in the previous game, she was really out of form, and Anushka Sharma was looking a bit good. So I thought India would chase this, but I guess they needed Shifali to fire from the top. Shifali gets 4 runs or 5 balls. Anushka gets 17 of 21. Jamima gets 1 of 4. Jamima struggled throughout the series. Just the previous match, she had some runs under her belt, but struggled for her again yesterday. Harmanpreet Kaur, 22 of 28. She should have gone big, you would say. That this was more or less a chase that maybe would suit her, but not to be. She struggled as well. Bharti Fulmi, 40 of 30. You'd say she's the only one who really put up an effort, but 40 of 30, she needed to go harder than that because uh, after her, Richa Ghosh put 25 of 15. So, yeah. Dipti, unfortunately, she couldn't have as big of an impact. 10 balls and 8 runs. She got stumped. Maybe if she stayed in a crease, who knows? Dipti and Richa last match they did put up a good showing, so that's what I'm saying. Who knows? And then after Richa, it's all the bowlers, so you wouldn't expect a lot of runs or the bulk of runs. Arundhati 2 of 1. Sorry, 1 of 2, 1 run of 2 balls, and then Kranti got 4 ball duck. She got run out. Sri Charni 1 of 2. So again, after you cross the lower middle order, you can't expect the bulk of runs. They ended up being restricted to 132 for 8. And then in this, we had 10 extras from wides and a no ball. We were a bit loose, but then we also took regular wickets at least. And also, we won the match. So that's the consolidation with the extras. A whole lot of extras, man. It's a lot. 10 wides and a no ball. It's quite a lot. At least 3 overs, 12 runs, and a wicket. For South Africa, I wouldn't say she's the pick of the day. The pick of the day for South Africa is Mlaba. 4 overs, 1 maiden, and 15 runs and 2 wickets. That's the pick for me. Other bowlers, Chloe 4 overs, 28, 1 wicket. Ayabonga Kaka 4 overs, 29, 1 wicket. She bowled the most wides. Not sure what was going on there. After that, Nadine 3 overs, 36, 2 wickets. Okay. And then Andre 2 overs, 20, no wicket for her. Yeah, our power play was 49, theirs was 28, and they lost how many? Yeah, they lost 2 in the power play. So nothing really substantial up top. 12 of 14, 9 of 7, 17 of 24. But then in the middle, you had 38 of 29, you had 23 of 19, and then you had 19 of 14. So these ones, one of these should have been impactful, especially in the middle order. One of those should have been impactful. One person should have been told to take the game on, to try and force some situation with the ball. And yeah, South Africa ends up winning the series 4-1. I don't know if that's a good sign or if that's a bad sign. Not sure. अब एक और मैच हुई थी कल, हुआ था एक और मैच हुआ था कल. ये मैच होता है यार. अरे देवा, क्या था ये. पहली बार ऐसा लग रहा था कि बैटिंग टीम का टारगेट अलग है और बॉलिंग टीम का टारगेट अलग है. अरे भाई, 8 रनों पे 6 विकेटें खो दी दिल्ली वालों ने. और वो भी कितने, आई थिंक 4 एक ओवर में
4 ओवर्स 8 रन और 6 विकेटें। यार भाई, क्या था ये, क्या था ये। मैंने ये शुरुआती वो नहीं देखा, वो बाद में देखा, जब मिलर आउट हुआ तब मैंने देखना शुरू किया। इतना पता है स्विंग अच्छा हो रहा था, अच्छा खासा स्विंग था। साथ साथ हवा भी बहुत थी। वो सैंडस्टॉर्म भी आया था, सैंडस्टॉर्म टाइप भी आया था। बाद में शुरू में तो भाई हवा ही नहीं लगने दी, हवा ही नहीं लगने दी, ना भुवनेश्वर ने लगने दी, ना उसने जॉश हेजलवुड ने लगने दी। कितने, 6 ओवरों में 6 विकेट और आई थिंक 11 1 रन थे। उन दोनों के नंबर्स मिला के वो तो फिर बाद में हेजलवुड को एक और ओवर मिली थी। वो मेरे को याद नहीं आ रहा उसने बाद में क्या किया था। इन लोग पे आते हैं बैटिंग पे। साहिल पारिक, पारक, 2 बॉल डक। और आई थिंक मैं पिछले लाइव में या कब, मैं कहीं पे तो बोल के गया था पहले कि निशंका और राहुल की जोड़ी अगर इसी से कंटिन्यू करोगे तो ठीक है, बट उसमें एक चेंज मैं मेंशन कर रहा था कि नीचे जो अभिषेक पोरल को डाला है एज इम्पैक्ट, अभिषेक पोरल को ओपन कराओ राहुल के साथ, क्योंकि निशंका और राहुल की गेम लगभग सेम है। गेम चलाओ टाइप, टुल्लागिरी नहीं करते वो लोग। तो अभिषेक पोरल को ओपनिंग करते, अगर ओपनिंग को छेड़ लेते तो, ओपनर्स को छेड़ लेते तो अभिषेक पोरल को डालते ओपनिंग और उसको फुल लाइसेंस देते टुल्लागिरी करने का। बट चलो, एक और लड़के को ट्राई किया, पे ऑफ नहीं हो पाया। 2 बॉल डक, भुवनेश्वर ने बोल्ड मारा इसको। अरे यार, भुवी भुवी भुवी। केएल राहुल कल कह के गया था मैं कि दिल्ली जीत जाएगी अगर केएल कुछ कर लेगा। केएल कह रहा है, अरे भाई केएल ऐठा हुआ है यार। पिछले मैच में पंजाब के अगेंस्ट उसका 150 खराब करा दिया। और केएल कह रहा है मैं अब ना करके दूर रन, अब तुम अपना देख लो। केएल ऐठा हुआ है यार, ऐठा हुआ घूम रहा है राहुल। यार राहुल जब भी अच्छा करता है ना वो तो फुल जान मार लेता है, लेकिन यार और लोग जाके वो काम खराब कर लेते हैं राहुल के लिए। बुरा लगता है राहुल के लिए। यार, 6 विकेट 8 रनों पे, यार ये कोई बात होती है दिल्ली वाले यार, फिर बाद में कहते हो दिल्ली वाले हैं खून खौल जाएगा, गर्म खून है, ये वो है यार। वो खून खौला देते। अरे 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 अरे, नीतीश राणा 9 बॉल और 1 रन। अरे भाई, अरे भाई, मैं बात ही क्या करूँ यही समझ नहीं आ रहा। वो अक्षर अक्षर वाला मामला हो के रखा है, बर्बाद हुए हो, बट कुछ सूझ नहीं रहा तो हंस के चले जाओ। और कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करे क्या कहे। हवा ही नहीं लगने दी उन्होंने, हेजलवुड ने और भुवी ने। समीर रिजवी पहली बॉल पे आउट हुई है। भाई तू तो कर ले कुछ यार, कब तक वो 2 मैचों की वो कमाई खाता रहेगा इस सीजन। कुछ कर ले यार समीर रिजवी, कुछ कर ले। हालांकि इस मैच में ठीक है कोई भी खड़ा नहीं हुआ तो ठीक है, बट यार समीर कुछ कर ले। ट्रिस्टन स्टब्स 3 बॉल 5 रन, 3 बॉल 5 रन भाई। बापू, अरे बापू मारी ने जता रिया हमें वारा, कई कर। 3 बॉल डक बापू के। भाई क्या कहूँ यही समझ में नहीं आ रहा किस पे क्या ही कहूँ। ये 3 लोग हैं, अभिषेक पोरल 33 बॉल 30 रन्स, डेविड मिलर 19 रन्स 18 बॉल, और कायल जेमिसन 13 बॉल्स और 12 रन। ये तीन ही है जो आए थे, बाकी तो सब ठीक ही है। कुलदीप 11 बॉल 3 रन भाई, और जमीरा क्या कहते हैं, अकेला रह गया, बोल्ड आउट हो गए। दिल्ली वाले 75 पे बोल्ड आउट हो गए 16.6 ओवर्स में, 16.3 ओवर्स में। यार आरसीबी वाले,
क्या कहूँ यार, दिल्ली वालों के लिए तो बीच में ये हालत हो गई थी कि टारगेट उनका 50 रन है। तो वो आरसीबी वालों के लिए ये हालत हो गई थी कि टारगेट उनका 49 रन है। ये 49 के अंडर इनको आउट कर लो, वो कलंक मिट जाएगा उनके सर से, जो कलकत्ता ने चिपकाया था 49 ऑल आउट का। फिर बीच बीच में ये भी फील आई कि ना ना, ये तो आरसीबी वाले जानबूझ के वो रन्स मरा रहे हैं, 49 क्रॉस करा रहे हैं, ऐसा जानबूझ के, ऐसी वो फीलिंग आई थी। भाई क्या था ये। बॉलिंग पे चलते हैं। इसकी आरसीबी की 4 एक्स्ट्रास चारों वाइड से आई है। और बुवी यार, 3 ओवर 5 रन और 3 विकेटें। और बुवी को मिड इनिंग में इंटरव्यू किया गया था। बुवी को पूछा था चौथी ओवर के लिए। बुवी कहता है, नो यू नो, बिकॉज ऑफ माई एज आई डिडंट वांट टू आज फॉर फोर्थ ओवर ऑल्सो, आई वाज टायर्ड, और ये सब करके। भाई बुई बुई, तू आज भी इंडिया खेल सकता है। और अभी जो इंडिया खेल रहे हैं उनसे तो बहुत अच्छा कर सकता है भुवनेश्वर कुमार। दिक्कत ये है, जो सिलेक्टर्स वगैरह है, इन्होंने वो चलो तय करके रखा है कि भुवी का इंटरनेशनल करियर ख़त्म हो चुका है, तो उसका कमबैक तो होगा नहीं भुवी का। बट वो आज भी कैपेबिलिटी रखता है अच्छा करने का इंटरनेशनल में। भुवी कितने का है? आई थिंक 35 या 36 का है, आई थिंक। ऐसा भी नहीं है कि रिटायरमेंट पे पहुंच चुका है, बट उसके नज़दीक तो है एज वाइज। बट यार, भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर्स कितने, 5 रन और 3 विकेटें, हवा ही नहीं लगने दी यार। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर लूँ यहीं पे कि पटीदार का समझ नहीं आया यार। भुवी से 4 लगातार डलवा देता, हेजलवुड से 4 लगातार डलवा देता, फिर बाद में बाकी बच्चों को देता। 30 एक रन में बात ख़त्म हो जाती, सब जल्दी चले जाते घर। हेजलवुड 3.3 ओवर्स, 12 रन्स और 4 विकेटें, जॉश हेजलवुड। उसके बाद कहाँ पे है, अरे बंद क्यों हो गया। उसके बाद राशिक 2 ओवर 21 रन्स, 1 रन राशिक महंगा पड़ गया। और रोमारियो भी महंगा पड़ गया, 2 ओवर 21 रन्स, कोई विकेट नहीं उसको। फिर सुयश 4 ओवर, 1 मेडन और 7 रन। और आई थिंक उसने 18 या 20, आई थिंक 20 डॉट बॉलें डाली है उसने, सुयश ने। अनबिलीवेबल बॉलिंग यार कल। कुणाल पांड्या 2 ओवर 9 रन और 1 विकेट कुणाल को मिली है। यार जो लाइन लगाई है ना कल विकेटों की, 0 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 7 पे 4, 7 पे 5, और फिर 8 पे 6, 4 ओवर ख़त्म होने पे। यार क्या क्या बॉलिंग की है ये आरसीबी वालों ने। 13 रन का पावर प्ले और 6 विकेटें। भाई साहब, पार्टनरशिप्स कुछ नहीं था, 0-2, 0-5, 0-1। फिर ये 35-31 में, 19-21 में, बस यही था। दो ही पार्टनरशिप्स थे डबल डिजिट्स में, बाकी तो सिंगल डिजिट में ही वो काम करके चले गए। उसके बाद आरसीबी वाले आए। आरसीबी यार, मतलब कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई दया माया कुछ नहीं है। ऐसे एक तो कूट के जा रहे हो दिल्ली वालों को बॉलिंग करते टाइम। हैं तुम लोग 11 बंदे हो फील्ड में, तो मतलब जो 2 बंदे आए सामने वालों की तरफ से, उनको कूट के जाओगे ऐसे? हैं 16 पॉइंट कितने, 3 में 75 पे ऑल आउट करके जाओगे ऐसे, कूट काट के जाओगे मारपीट करके? और फिर जब मिड इनिंग आता है, जब अगले जाके बाहर जाके वो मरम पट्टी वगैरह लगाते हैं, फिर तुम आते हो। फिर तुम जो 2 बंदे भेजते हो, वो दो भी उनके 11 पे भारी पड़ते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई यार आरसीबी वाले, ये तो कोई मानवता वाली बात नहीं हुई। है कम से कम मानवता के चलते ही थोड़ी एक्टिंग कर लेते। दिल्ली वालों ने कम से कम मैच तो खींचा है 16th ओवर तक। यार तुम तो क्या यार, पावर प्ले में ही खत्म करके चले जाए यार। जेकब बैथल, ये बच्चा
ये कूट के गया है उनको। और नटराजन जेमिसन वगैरह सबको कूट के गया है ये जेकब बैथल बच्चा। 11 बॉल में 20 रन, ये कोई तरीका होता है? विराट कोहली नॉट आउट गया है, सोच लो। सोच लो, नॉट आउट गया है विराट कोहली इतने बड़े चेज में। 15 बॉल में 23 करके गया है। 153 का स्ट्राइक रेट है अगले का। है ये कोई बात हुई? डेव दैट पेडिकल, ये पता ये तो यही दिमाग लगा के आया है कि 265 चेज करना है। और अभी 10 ओवर हो चुके हैं और मेरे को ही वो जितानी है मैच। ये 13 बॉल में 34, ये कोई बात हुई यार? एक्टिंग ही कर लेते। 15वें ओवर तक लेके चलते, एक्टिंग कर लेते कि नहीं नहीं, पिच पिच में डेफिनेटली कुछ तो था। अरे भाई, कोई एक्स्ट्रास कुछ नहीं इन लोग की तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से। जेमिसन 3 ओवर 42, एक विकेट। ए भाई, 70 कितने 5 का टोटल है, और 42 खुद देके जा रहा है 18 बॉल में। ये भगवान। चमीरा 2 ओवर 18, चलो थोड़ा बहुत अच्छा किया है। बापू 1 ओवर 5, बापू भाई। हे रे बापू, बापू बापू। नटराजन 3 बॉल 12 रन। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। 65 का पावर प्ले। कितने 11 एक रन चाहिए थे लास्ट में, नटराजन को कूट दिया 3 बॉल में। क्या था ये? है कोई मानवता, कोई दया माया कुछ? आरसीबी वाले एक्टिंग ही करके जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। चलो जीत रहे थे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हार जीत चलती रहती है। अरे यार, कोई दया माया कोई अगले के ऊपर है? कोई हाथ ही रख देते अगलों के कंधे पे कि नहीं नहीं, पिच में एक्चुअली कुछ था। वो तो हमारे वाले कुछ ज़्यादा ही पगलाते हैं, इसलिए जल्दी चेस करके चले गए। यार, ये तो क्या है? इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये। इन अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर बाय आरसीबी। आरसीबी पहुंच चुकी है सेकंड पे पॉइंट्स टेबल में। 8 मैच खेले, 6 जीते 2 हारे, 12 पॉइंट है उनके। नेट रन रेट +1.9, इतना अच्छा हुआ है ना इनका नेट रन रेट। एक तो ऑल आउट किया है दिल्ली को बॉल रहते हुए, और फिर जस्ट पावर प्ले के बाद ही चेस कर लिया टोटल। और नेट रन रेट हुई 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 हुई। फिर तो दिल्ली वाले, ये जो पिछली साल हुआ था इनके साथ, वो पता नहीं कौन सा मैच था, वो मिडवे तक तो इन्होंने आई थिंक एक ही हारा था। पिछले साल आई थिंक 7 मैचों में 6 जीते थे। फिर जब आठवां आठवां 9वां 10वां मैच के अराउंड जब आए, फिर जो इन्होंने हारनी चालू की है। अरे भाई साहब, स्टार्ट अच्छा लेते हैं सीजन में, बट वो मेंटेन नहीं कर पाते। और दिल्ली वाले अब आई डोंट थिंक, वैसे तो चांसेस है उनके, बट जिस हिसाब से वो जा रहे हैं, एक तो 256 डिफेंड नहीं कर पा रहे। उस साइड वो एक मैच याद आता है, पता नहीं कौन सा था, गुजरात वाला था कौन सा था, 2 बॉल में 1 रन चाहिए थे, वो हार गए। अह, और फिर आज 75 ऑल आउट। दिल्ली वाले नहीं उभर पाएंगे, दिल्ली वाले नहीं उभर पाएंगे। पॉइंट्स टेबल तो वही है, पोजीशंस वही की वही है, कोई चेंजेस है नहीं। आरसीबी सेकंड पे थी, सेकंड पे ही है, बस 2 पॉइंट बढ़ गए उनके। दिल्ली जहाँ पे थी वहीं पे है, बस नेट रन रेट उनका और माइनस माइनस में चला गया है। यही था यार, कल कल के मैच पे तो क्या ही बोले, कुछ समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है क्या नहीं। कुछ कुछ समझ ही नहीं आया यार। अब आज आज के मैच पे चलते हैं। आज रात को क्या है और कहाँ पे है मेन चीज़, ये मेरे को नहीं पता कहाँ पे है। मुल्लापुर, अच्छा अच्छा, उसमें है, पंजाब में है। पंजाब एंड राजस्थान का मैच है आज। पंजाब एंड राजस्थान। पंजाब जीत जाएगी। पंजाब जीत रही है। पंजाब सारे बेसिस कवर है। फील्डिंग फील्डिंग में चलो शशांक लेट डाउन कर रहा है बहुत ज़्यादा।
बट ओवरऑल अगर देखा जाए फील्डिंग भी कवर है, बॉलिंग तो कवर है ही है, बैटिंग भी कवर्ड है। और तो क्या ही है, यही है राजस्थान वालों का। ये है कि ऊपर से वैभव को आउट कर लो। जायसवाल का उतना बड़ा वो आ नहीं रहा इम्पैक्ट। जायसवाल को आउट कर लो और जुरेल और सॉरी वैभव को आउट कर लो, और जुरेल और जायसवाल के बीच में देख लेना कौन ज़्यादा मार रहा है, उसको कंट्रोल कर लेना, फिर तो मैच अपना है। फिर नीचे तो बर्बादी चल रही है। जडेजा भी वो इम्पैक्ट आ नहीं रहा। वो तो कितने सालों से नहीं आ रहा है T20 में इम्पैक्ट उसका बैटिंग से। वो तो उसने उस टाइम पे किसको, अरे वो कौन सा फाइनल था जो CSK जीती थी 22 या 3 में, 10 रन चाहिए थे 3 बॉल में, ऐसा कुछ था। और जडेजा ने कूटा था मोहित शर्मा को। वो जो लास्ट टाइटल जो ये जीते थे पीले वाले, बस वही है, वो 2 बॉल ही है, वरना तो कितने टाइम से उसका नहीं आ रहा। वो फाइनल के बाद तो आ ही नहीं रहा, और वो फाइनल के पहले भी नहीं आ रहा था जडेजा का T20 में। तो उस हिसाब से फिर हेटमायर तो बर्बाद घूम रहा है। शुभम पता नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। शुभम पिछले साल अच्छा करके गया था, उसको नहीं खिला रहे। एक मैच में खिलाया था फिर वापस बिठा दिया। बॉलिंग तो इनकी भी अच्छी है राजस्थान वालों की, आर्चर है, बर्गर है, बट पिछले मैच में बहुत मार खाई थी इन्होंने, राजस्थान वालों ने। आई थिंक ओवरऑल तो पंजाब की साइड स्ट्रांग लग रही है। पंजाब जीतनी चाहिए। अगेन डिपेंड करता है वैभव क्या करेगा। तो यही है, पंजाब जीत रही है। और तो कुछ है नहीं, कल की मैच पे तो क्या ही बात करें, कुछ समझ ही नहीं आ, हाल दिल्ली वालों की तरह हो के रखा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। और यही था, सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है उसकी, साउथ अफ्रीका और इंडिया की। अब आई थिंक मंथ का गैप है वुमेंस की सीरीज़ में, एंड वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा जैसे IPL ख़त्म होगा वैसे। वर्ल्ड कप है इंग्लैंड में, वो तो वर्ल्ड कप के टाइम के अराउंड बात कर लेंगे वर्ल्ड कप पे। अभी तो बस IPL चलेगा। यही था, और तो कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ है क्या बात करने लायक। मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है पंजाब और राजस्थान के बीच। और अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ा हो जिस पे किसी को बात करनी हो तो उसका भी मेंशन कर लेना कमेंट सेक्शन में। यही था। कल मिलते हैं पंजाब और राजस्थान के मैच के रिजल्ट के बाद।